Welcome back, viewers. जी सलमान, clocks move forward by an hour. इस पे traders और आपके जो markets हैं, they have reacted badly to it. Especially ये जो 9 o'clock आपके बाद lights वाइट्स बंद कर देने का जो है. How do you feel? No, they haven't reacted to the clocks. Not moving forward, but the 9 o'clock lights off, yes. Well, markets closed. Moving the clocks is a very sensible move, obviously, because even rich countries do it as well. Because in daylight hours, the longer the daylight hours, the less lights you use. I mean, true. Yeah. ये कोई rocket science तो है नहीं. So I think that's a very good move. What the traders object to is कि जी दुकानें जल्दी ना बंद कराएं हमसे. वजह यह है कि लोग काम से वापस आते हैं और इस मुल्क में एक रीत बनी होती है कि लोग फिर काम से वापस आके बाद में जाके आराम आराम से शॉपिंग करते हैं. फिर शॉपिंग भी जो है पाकिस्तान में इट्स आल्सो एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट जस्ट शॉपिंग. तो घरों से लोग निकलते हैं, शाम को बच्चे लेके जाते हैं दुकानों में, रौनक शौनक देखने के लिए निकलते हैं. तो ये उनको फिर एक दिस इज अ चेंज इन देयर लाइफस्टाइल. सो ऑब्वियसली दे डोंट लाइक इट. बट द थिंग इज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कंट्री, एंड व्हेन वी डू फेस कलेक्टिव प्रॉब्लम्स, this electricity and this petroleum, this is an external shock. And it is important that as a nation you combine collectively to face problems. आखिर अगर जंग होती तो लोग इकट्ठे होके हर चीज छोड़ने को तैयार हैं, तो ये भी एक इक्तिसादी जंग है इस वक्त तो है तो इसमें अगर आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो मैं समझता हूँ देनी चाहिए. हर बात हर एक की मर्जी से तो नहीं हो सकती. लोगों को यही लगता है कि आप टैक्सेस पे करते हैं, आप ये सब कुछ करते हैं, आपकी टैक्सेस तो पे ही नहीं करते. नहीं, आपके नहीं, बहुत लोग पे भी करते हैं. बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग नहीं भी. लेकिन बिजली का इतना मेजर बहरान कैसे आ गया? सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं वो नहीं करते. वो प्रॉब्ली नहीं करते होंगे. लेकिन बिजली का ऐसा बहरान क्यों आ गया पाकिस्तान में? ये पहले से किसी को मालूम नहीं था? ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था इस पे? देखिए, इसमें अगर आपने ट्रेस करना है तो the only time the electricity capacity was enhanced was during the People's Party government. Since 1996 till today, there was no more capacity introduced. तो सारे इसमें President Musharraf की हुकूमत और उससे पहले भी जो मुस्लिम लीग हुकूमत है, they are all to blame. पहली बात. दूसरी बात यह है कि in 1976 was the last time we built a reservoir in Pakistan, तरबेला. अब 30 साल में आपने कोई रेजर्वायर्स नहीं बनवाए. अब जिस मुल्क में 75% पानी जो है, इट्स अ ग्लेशियल फेड वाटर सिस्टम, यहाँ बारिश तो नहीं होती जी. तो जब 75% पानी जो है वो 3 महीने में गुजर के समुंदर में जाके ज़ाया हो जाता है, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वी शुड हैव बिल्ट रेजर्वायर्स. And reservoirs is the cheapest way of providing electricity. But when we had a surplus of electricity at one stage, the fact is that there has been a huge expansion of the electrical output. The industry has used it. Industry has grown. Just for example, 50,000 villages in Punjab have been electrified over the last few years. So they miscalculated the economic growth, the demand with the capacity, and that is bad planning. But I think some of the measures taken by the People's Party government, like putting the clocks forward, like redesigning electric supply so it goes towards more industry and less towards consumers, there are other measures also they're contemplating, energy saving, etc., etc. I think, and also they've brought new companies are coming into production. So I think in a year or so we'll get over it. But I think a lot of people are to blame for this. This is not one person's responsibility. No, this goes back a long time of bad planning. इसी से मैं जाती हूँ जो flour crisis चल रहा है. Farmers go on strike in twin cities. Atta selling at high rates. These are very serious issues. Yeah. आपके common आदमी के पास आटा नहीं है. नहीं, आटा तो है. रोटी नहीं है. इतना महंगा है कि वो afford नहीं कर सकता. पहले shortage है और फिर महंगाई है. तो ये इन चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ये भी एक एक्सटर्नल शॉक है. ग्रेन प्राइसेस यानी दाने की कीमत ना सिर्फ और खाने की ना सिर्फ पाकिस्तान में, ये एक बैनुल अक़वामी मसला है. फूड राइट्स फिलीपींस में हुए, बांग्लादेश में हुए, सीरिया में हुए, कराची में हो रहे हैं, मेक्सिको में हो.
और वजह यह है कि ये एकदम कीमत जब इन चीज़ों की उठती है, एक आम बंदे की जो तनख्वाह है या जो इनकम है उसमें से 95% आर एसेंशियल्स, यानी फूड एसेंशियल्स। yes. अगर वो एसेंशियल्स उसके ऊपर चले जाएं तो ही फेसेस सवेयर प्रॉब्लम्स। अगर हमारी ज़िंदगी में ये होता है तो हमारे कोई उस पर असर इतना नहीं पड़ता, बिकॉज एसेंशियल्स में बी 20% ऑफ आवर इनकम और डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इनकम इज़, सो इट हिट्स द पुअरेस्ट सेक्शन। दूसरी बात यह है कि अगर आप सब्सिडी हटाएं, अब सब्सिडी का मसला क्या होता है, सब्सिडी होती थी, फ्लावर मिल्स के पास आटा जाता था, एक ट्रक इधर जाता था कंज्यूमर की तरफ और एक ट्रक अटक क्रॉस करके वी वर फीडिंग द होल ऑफ सेंट्रल एशिया। सो देयर वाज स्मगलिंग, वी वर सप्लाइंग wheat, atta to everybody. In fact, even today, the price of atta in Pakistan is cheaper than India. We are nearly 35-40% cheaper than India and Bangladesh and Sri Lanka and Afghanistan. So when you give subsidies, somebody benefits by it financially. If you don't have subsidies, then the farmer benefits. And the farmer is mainly in central Punjab who grows wheat. But वहाँ क्या होता है, इकोनॉमिक डिसफिगरेशन हो जाती है। वो फार्मर की उसमें इनकम में इजाफा होता है, लेकिन जो कंज्यूमर हैं, सिटी बेस्ड कंज्यूमर, ही हैज़ टू पे फॉर इट। अब प्रॉब्लम हमारे मुल्क में यह है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, मसलन MQM, देयर कंस्टिट्यूंट्स आर सिटी बेस्ड इन कराची मेनली, तो उनको उनकी जब कीमतों में इजाफा होता है फिर एक सियासी पार्टियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनकी अक्सरियत सपोर्ट की जो है वो रूरल बेस्ड है ज़्यादातर, तो वो जो ग्रेन ग्रो करते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो कंज्यूमर भी कम है। और नवाज़ शरीफ की सपोर्ट शहरों में, पंजाब में, तो वो भी एक तरफ खींचेगा। तो ये देखें, इसमें पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी हैं, इसमें इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस भी हैं और इसमें वर्ल्ड वाइड रैमिफिकेशंस हैं। तो इसका कोई आसान हल नहीं है। पर अपने मुल्क में पॉलिटिकल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही के लोग पिस रहे हैं। फिर देखें, वही लोग जो आपको वोट दे के लेके आते हैं वही पिस रहे हैं। तो क्या करें, क्योंकि आप लोग आपस में चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी तक तो हम कह रहे हैं ना कि जो गरीब तबका है उनको फौरन दे शुड गेट अ कैश बेनिफिट। यस, दे शुड हैव सीरियस फोकस नीड्स टू बी पुट ऑन स्ट्रेट कैश बेनिफिट टू पुअर पीपल। उसमें यह है कि शहरों में भी, देहातों में भी और हर शहर में, मतलब कराची के गरीब लोग, लाहौर के गरीब लोग, रूरल एरिया, उनको फौरन एक कैश सब्सिडी मिलता है। ये बेहतर तरीका है रादर देन, देखिए, अदरवाइज इफ यू सब्सिडाइज आटा, if you're sitting in the Intercontinental and having a very nice meal there, you're paying the same for atta as a poor man who's sitting in his house with one roti. आपको भी उतना ही आटा सस्ता है, उसको भी उतना आटा सस्ता है। तो ये बात जो है ये सोचने वाली है और मैं समझता हूँ बेस्ट तरीका है। I'm not an expert on everything under the sun, but my opinion is that you should give cash subsidies to the poor section of the population in order for them to buy this. Whether you give it in the form of stamps, which they can buy, wheat or basic commodity. That's the best way to get around it. And then when the more money comes into the agricultural sector, the farmer will grow more crops. He'll have more money to invest in fertilizer. He'll spend more money on seed, better seed, and you'll get a better output. So over a period of time, you'll be able to, come out of this. Overcome this problem. Yeah. But इसमें कोई again कोई जादू की छड़ी नहीं है. Salman, last very quick question. Who do you think is the most beautiful woman in the world? You asked me once before this question, and I told you that if I am on the public thing, I have to say my wife, and I'm sure everybody says his wife. But your wife is beautiful. Yeah, my wife is beautiful, so that's accepted now. All right, thank you very much. I should put it here now when I come. My wife is the most beautiful woman in the world. She is. I have to agree there. Thank you so much for taking time out. It's been a pleasure talking to you, Salman. Thank you. Thank you. It's time to sign off. That's goodbye from Sabah Jamal and her team.